بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قریش مکہ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار میں لڑنے جھگڑنے میں عاجز آ گئے تو انہوں نے مل کر ایک عہد نامہ تحریر کیا۔ انہوں نے خدا کے نام حلف اٹھایا کہ وہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے آئندہ قطع رحمی کر لیں گے، نہ ان کا رشتہ لیں گے نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے اور نہ انہیں کوئی چیز دیں گے اور نہ ہی ان سے کلام کریں گے۔ یہ عہد نامہ کپڑے میں لپیٹ کر سر بمہر کیا گیا اور دیوار کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ جب ابو طالب کو پتہ چلا تو تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ہمراہ شعیب ابو طالب میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا مقیم ہو گئے اور 3 سال تک وہیں شب بسرا کی۔ کسی نے بھی ان سے اپنی نسبت کا احساس کرتے ہوئے بھلائی نہ کی، صرف ابو العاص بن ربعہ جو حضور کے داماد تھے کبھی کبھی رات کے وقت گندم اور کھجوریں وہاں لے جاتے۔ حضور نے ان کے اس کار خیر کی تعریف کی اور اسے سراہا۔ جب ان کی حالت تنگ ہو گئی اور قریش کی سختی انتہا کو پہنچ گئی تو حق سبحانہ وتعالی نے عہد نامہ قریش پر کسی جاندار چیز کو مسلط کر دیا جس نے سوائے خدا کے نام کے تمام تحریر کو طلب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو مطلع کیا۔ ابو طالب تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ عمدہ لباس تن کیے مکہ معظمہ میں آ گئے اور قریش میں آ کر بیٹھ گئے۔ قریش نے ان کا احترام و اکرام کیا تو ابو طالب نے کہا، اے گروہ قریش، ہم تمہارے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں، امید ہے کہ تم اس میں عدل و انصاف سے کام لوگے۔ کہنے لگے، ہم احسان کریں گے۔ ابو طالب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ خدا تعالی نے تمہارے عہد نامے پر ایک ایسا جاندار مسلط کر دیا ہے جس نے سوائے خدا کے نام کے اس میں کچھ نہیں چھوڑا اور صلہ رحمی اور ظلم و ستم سے متعلق ہر چیز کو کھا گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی اس سے جھوٹ نہیں سنا۔ اسے دیکھو، اگر درست ہے تو خوف خدا کرو اور اس ناپسندی طریقہ کار سے باز آ جاؤ۔ اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کی حمایت سے دستکش ہو جاؤں گا، پھر تم جو چاہو کر لینا۔ قریش بولے، اے ابو طالب، یہ اچھا خیال ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو عہد نامہ لانے کے لیے بھیجا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کے سوا کوئی چیز باقی نہ تھی۔ حضرت ابو طالب نے ان کی مذمت و ملامت کی، وہ سب خاموش ہو گئے، کچھ کہہ نہ سکے اور اس عہد نامے سے منحرف ہو گئے۔ بعد ازاں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درہ سے باہر آئے اور قریش مدت تک آپ سے صلح پر کار بند رہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی جانے والی دستاویز اور دستاویز ظلم تار کر دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال موسم حج پر قبائل عرب کو اپنی دعوت کرنا شروع کی۔ قبائل کے سرداروں سے آپ کی گفتگو یہ ہوتی تھی کہ تم لوگ مجھے اپنے ہاں پناہ دو، میری حفاظت کرو، میں تمہیں اپنے دین کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔
जो इसे पसंद करेगा कबूल करेगा और जो पसंद न करेगा मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी हिफाजत करो ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचा सकूं। फिर अल्लाह ताला मेरे लिए जो चाहेगा फैसला फरमाएगा। मगर किसी कबीले ने आपकी ये दावत न मानी और किसी ने यही जवाब दिया कि किसी शख्स को उसकी कौम ही बेहतर जानती है। क्या तुमने कभी ऐसा शख्स देखा है जो अपनी कौम को छोड़कर दूसरों का भला सोचे? दर हकीकत अल्लाह ताला ने आपकी नुसरत और आयानत करने का एजाज अंसारे मदीना के लिए रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के 3 सरदारों अबद, मालील, मसऊद, हबीब इन तीनों पर इस्लाम पेश किया, बजाय इसके कि कलमा हक को सुनते निहायत सख्ती से आपको जवाब दे दिया। एक बोला, क्या खुदा ने काबा का पर्दा चाक करने के लिए तुझको नबी बनाकर भेजा है? दूसरा बोला, क्या खुदा को अपनी पैगंबरी के लिए आपके सिवा और कोई नहीं मिला? अगर तो अल्लाह का रसूल है तो मैं काबा के सामने दाढ़ी मुंडवा दूंगा। तीसरा बोला, खुदा की कसम मैं तुमसे ही कलाम न करूंगा। अगर वाकई में अल्लाह ने तुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है तो तेरे कलाम का रद्द करना सख्त खतरनाक है। मगर इस नादान ने समझा कि अल्लाह के पैगंबर के साथ इस्तेहजा और तमस्खर करना इससे भी ज्यादा सख्त है, और अल्लाह ताला के रसूल नहीं तो फिर खताब और लायक इल्तफात नहीं। जिसे सफर के लिए गधिया तक मुयस्सर नहीं, क्या खुदा को इसके सिवा रसूल बनाने के लिए और कोई नहीं मिलता? टूटे हुए दिल के लिए यह पहला तीर था जो अमारत के नशे में चूर एक अमीर की जबान से निकला। इस तरह की दिल आजार बातें करने के बाद उन्होंने मजीद फिरौनियत का मुजाहरा किया और कहा, अखरुज मिन बल्दी नार, निकल जाओ हमारे शहर से। हजूर ने इनसे रुखसत होने से पहले कहा कि मेरे साथ जो बर्ताव तुमने किया है वो तो क्या अब ये सारा मामला राज रहे, इसको अफशा न करना। क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम को खदशा था कि अहले मक्का को अगर मालूम हो गया कि मैं ताइफ गया हूं, वहां के रईसा को कबूल इस्लाम की दावत दी है और उन्होंने वहां बड़ी सर्द मोरी से इसे ठुकरा दिया है, तो अहले मक्का खुशी के शादियाने बजाएंगे और इस्लाम के खिलाफ इनके नुआइंदाना रवैया में मजीद तेजी और तलखी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इनमें तीनों में मुरव्वत नाम की कोई चीज न थी। उन्होंने इस वाकया की खूब तशहीर की और हल्ला गुल्ला किया और इलाका में हर बंदे को इसके बारे में इतला की। वह हर मिलने वाले से इस मुतकब्बिराना बल्कि अहमकाना जवाब का तज़किरा मजे लेकर करते रहे, और इससे भी ज्यादा खस्त और जिल्लत का उन्होंने यूं मुजाहरा किया, कहने लगे, या मोहम्मद उखरुज मिन बल्दिना, कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ, हमें अंदेशा है कि तुम हमारे नौजवानों को अपने दीन से बिगाड़ दोगे। इसके अलावा उन्होंने शहर के उबाशों और नौखेज छोकरों को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे लगा दिया। वो जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हो गए और हजूर का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। आवाज कसते, फुबतियां उड़ाते, दशनाम तराजी करते, अपने बुतों के नारे लगाते हुए हजूर के पीछे लग गए। जिस रास्ता से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरना था, ताइफ के शहरी दुरू ये सफ़े बनाकर बैठ गए और हुजूर जब इनके दरमियान में से गुजरे तो उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू किए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबरकत कदमों को अपने पत्थरों का निशाना बनाते चलते हुए जो पांव जमीन पर रखते ठक से पत्थर इस पर आ लगता।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे उठाते और दूसरा पांव जमीन पर रखते तो वो पांव इनकी जिद में आ जाता, यहां तक कि इन जालिमों की संगबारी से मुबारक कदम जख्मी हो गया और खून बहना शुरू हो गया। जोड़ों की चोटों की तकलीफ की वजह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर बैठ जाते हैं तो वो आपको पकड़कर खड़ा कर देते हैं ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिर से पत्थर बरसाए जाएं। चुनांचे आप मजबूरन चलना शुरू कर देते हैं और वो सितमगर पत्थर मारते और ठट्ठे लगाते हैं। 2 मील तक मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसी तरह पत्थर बरसाए गए। ज़ैद बिन हारसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से बचाने के लिए खुद पत्थरों की बारिश अपने ऊपर लेते रहे, यहां तक कि इनका सर फट गया। तो दिल के अंधों ने हदायत की छोड़कर गुमराही को अपना लिया, रोशनी को छोड़कर तारीकी में पनाह ले ली और मौसम आजम पर संगे बारी करके अपनी खबासत का सबूत दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर ताइफ से निकल गए। बदमाशों ने आपका ताकब करना छोड़ दिया। इन्हें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने शहर से निकाल दिया है। इन्हें तो अपनी सरदारी अजीज है और इस खौफनाक अजाब का ख्याल तक नहीं है जो अल्लाह के रसूल को बस्ती से निकाल देने वालों पर आया करता है। अर्ज़ो समा की वुसअतें पुकार पुकार कर कह रही हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, याद रखो तुम्हें भी दूसरों तक इनका पैगाम पहुंचाने की पादाश में ऐसे ही मसाइब से गुजरना पड़ेगा। फिर क्या मायूस होकर रह जाओगे? क्या इन मज़ाहमतों पर संगबारी करोगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतल लिल आलमीन हैं। तुम भी वो शफकत का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो ताकि तुम पर रहमत होती रहे। कुरैश मक्का के बड़े चौधरी रबिया की जिम्मेदारी ताइफ में थी। रबिया के दोनों बेटे शैबा और उतबा यहां आए हुए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखकर उन्हें तरस आ गया और अपने ईसाई गुलाम उदास के जरिए प्लेट में अंगूर के खोशे लगाकर भेजे। उदास बाबल का बाशिंदा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूर के खोशे रख दिए। आन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तावन फरमाना शुरू कर दिए। जब तनावल फरमा लिए तो बिस्मिल्लाह पर उदास के ताज्जुब की कोई हद न रही। उसने अर्ज किया, ऐ साहिब, इस बस्ती के रहने वाले तो ये कलमा नहीं पढ़ते, खुदारा मुझे भी इसकी हकीकत बताइए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा वतन कहाँ है और तुम्हारा मजहब क्या है? उदास ने कहा, मेरा वतन नैनवा है और मजहब नसरानी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही नैनवा जहां एक मर्द साले यूनुस बिन मती पैदा हुए थे। उदास ने कहा, यूनुस बिन मती को आपने कैसे जाना? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम नबुवत में मेरे भाई हैं, मैं भी नबी हूं। रसूल खुदा की जबान से ये कलमा अभी पूरी तरह अदा न हुआ था कि उदास ने सर से पांव तक हजरत के रूए को बोसा दिया। शैबा ये मंजर देख रहा था, उससे रहा न गया। गुलाम वापस लौटा तो कहा, ऐ बदनसीब, तू इस शख्स से किस गजब की अकीदत का इजहार कर रहा था? उदास ने कहा, इस वक्त दुनिया जहान में ये शख्स सबसे बेहतर है। इसने मुझे ऐसी बातें बताई हैं जिसे दूसरा जान भी नहीं सकता। शैबा ने कहा, अरे तेरा दीन इसके दीन से बदर जहां बेहतर है, इसके दीन में न चले जाना। और ऐसा ही हुआ। उदास रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। जब शैबा और उतबा जंगे बदर के लिए निकले तो उदास मक्का से बाहर सबियतुल बैत नाम के टीले पर बैठे हुए थे। शेबा और उतबा इधर से गुजरे तो हजरत उदास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोक कर कहा,
وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شعیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جیل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجش موت درج تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج اور ایسا ہی ہوا۔